Hello and welcome all of you. You're watching K-Commerce Academy with me Kunal Singhal. So I'm here available with the latest guidelines of CBSE regarding the accountancy project work and the computerized accounting project work. The publication is of CBSE, so obviously it's an authenticated information, but in this video we will be discussing the guidelines for project work in accounting only and the practical work of accounting only, but not in computerized accounting. उसके लिए हम कोई और वीडियो बना के उसको शेयर करेंगे. आज हम अकाउंटेंसी का डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस पब्लिकेशन जो CBSE ही इशू करता है वो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, और इसमें पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल के बारे में मैं डिस्कस करूँगा. सो हेयर वी आर. देखिए क्या लिखा है. गाइडलाइंस फॉर प्रोजेक्ट वर्क इन अकाउंटिंग. द बोर्ड हैज़ इंट्रोड्यूस्ड प्रोजेक्ट वर्क इन अकाउंटिंग फॉर क्लास 12th in the optional part B, financial statement analysis. It is expected that the project work will help the students in developing the skills to comprehend, analyze, and interpret accounting data of the business firms and make it meaningful for taking business decisions. सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमारे सिलेबस में ये अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल्स इंक्लूड किया है. एज यू नो प्रैक्टिकल्स तो नॉर्मली केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, साइंस में हुआ करते थे. क्यों इंक्लूड किया है? द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ कि जो हम अपनी बुक्स में पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या रियल में वैसा ही होता है या नहीं. प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर कर सके बच्चा, अपनी जो बुकिश नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अप्लाई करके देख सके, वो उसका मेन पर्पस है. नाउ द प्रोजेक्ट वर्क विल बी ऑफ 20 मार्क्स. साफ साफ आपको लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीन पे. ओके, दैट इट इज़ ऑफ 20 मार्क्स. और जिसका ड्यूरेशन कितना है? द ड्यूरेशन विल बी ऑफ 1 hour 30 minutes. द मार्क्स weightage will be of complete 20, of which the 4 marks will be for the project file. There will be a written test of 12 marks and the viva voice will include the 4 marks for that. तो ये टोटल आपका इस तरह से 20 मार्क्स का हो जाता है. ठीक है. जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसके लिए आपको कितना टाइमिंग मिलेगा? 12 मार्क्स का जो रिटन टेस्ट है उसके लिए आपको 1 hour का टाइमिंग टोटल अलाउ होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. What are the objectives? To enable a student to complete the accounting process in real life, business situations and apply the tools of analysis as per the syllabus for a comprehensive project. So जो भी आपने पढ़ा है, समझा है, उसको आप लाइफ में अप्लाई कर सकें और देख सकें कि क्या प्रैक्टिकल बिजनेस वर्ल्ड में भी वही चीज़ें अप्लाई होती हैं नहीं. To develop the competence of regarding reading accounting data from quarterly or half-yearly, yearly or annual reports of business firms and interpreting the information on the basis of given guidelines to present the desirable information in required format in the project file for a specific project. So जैसे कि आपको पता है कि हमें एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ही बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है इसे आप अपने प्रोजेक्ट फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए. ठीक है. स्पेसिफिक प्रोजेक्ट चाहे आप रेशियो एनालिसिस पे बनाते हैं, सेगमेंट रिपोर्टिंग पे बनाते हैं या कैश फ्लो स्टेटमेंट पे बनाते हैं, ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसे आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट फाइल में एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रैक्टिकल और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन प्रोजेक्ट वर्क. ओके. Now there are certain guidelines for teachers also. During the academic session, the students will work on at least 3 types of projects. No, not 3 types of projects. Obviously, there will be a comprehensive only. So here we can just start with the comprehensive information. 2 projects will be of specific nature using at least one tool of analysis in each. The data for these will be drawn mainly from quarterly or half-yearly or annual reports of corporate sector. Students will analyze the information given in the financial statements as follows. सबसे पहला, performance of segment keeping in mind their 3 parameters, that is revenue,
net profit and capital employed of the company on quarterly or half yearly or annual basis। यानी कि अगर आप सेगमेंट रिपोर्टिंग पे अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको मेन कौन से पॉइंट्स को लेते हुए उनमें एनालिसिस प्रिपेयर करना है। यू हैव टू टेक रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ वेरियस सेगमेंट्स फॉर द एनालिसिस पर्पस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉर दिस पर्पस यू कैन टेक द पब्लिश्ड रिपोर्ट्स, यू कैन टेक द पब्लिश्ड रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनीज। आपको बनाना नहीं है, आपको एनुअल ऑडिटेड रिपोर्ट जो होती है या फिर जो पब्लिश्ड रिपोर्ट होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी जो भी आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको नेट पर ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो उन्हें आप डाउनलोड कर लें और फिर आपको सिर्फ एनालिसिस प्रिपेयर करना है। इट कैन बी पिक्ड अप ईदर फ्रॉम न्यूज़पेपर्स और फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। साफ लिखा हुआ है, आपको कुछ भी खुद नहीं प्रिपेयर करना है, बल्कि इट कैन बी पिक्ड अप व्हाट दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी पिक्ड अप फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स और फ्रॉम द वेबसाइट्स। पूरा का पूरा जो एनालिसिस है वो उसमें से कॉपी मत कर लेना, वो आप अपने माइंड से यूज़ करें। द कंपैरिजन ऑफ रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट एंड अर्निंग पर शेयर on quarterly, half yearly और annual basis with the help of comparative and common size statements। तो या तो आपने क्या था, रेवेन्यू, कैपिटल एम्प्लॉयड एंड प्रॉफिट को कंपेयर, या फिर आप अगर कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट एंड अर्निंग पर शेयर को कंपेयर करते हुए कर सकते हैं। ठीक है, द प्रोजेक्ट्स गिवन इन दीज गाइडलाइंस आर ऑन सैम्पल एरियाज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज लाइक सेगमेंट रिपोर्टिंग एट्सेट्रा। द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर फ्री टू एक्सप्लोर मोर सच एरियाज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। देयर आर 4 tools of analysis given in the syllabus of the analysis of financial statements, namely comparative statement, common size statement, ratio and cash flow statement। तो ये 4 ही टूल्स हैं जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। एनी वन, देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, एनी वन और मोर ऑफ दीज टूल्स टू बी यूज्ड टू ड्राइव कंक्लूजन। बहुत सारे बच्चे के माइंड में कन्फ्यूजन है, टीचर्स भी उनको मिसगाइड कर रहे हैं कि आपको 2 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स बनाने हैं या ऐसा कुछ भी। तो साफ साफ लिखा है एनी वन टूल कैन बी यूज्ड। ओके, सो एनी वन or more of these tools are to be used to derive conclusions. No project is to be prepared on the tools, but these tools are to be used to achieve the object of the project. For instance, there will not be any project on the ratios as such, but ratios will be used in the development of the project to reach conclusion। that is, आपने अगर segment reporting पे बनाया है या whatever it may be, उन रेशियोज़ को, उन टूल्स को यूज़ करके आप अपने फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। ओके, सो फॉर द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, for the purpose of project work, the following ratios may be included, that is liquidity ratio can be taken, solvency ratios can be taken, activity ratios can be taken, profitability ratios can be taken। जैसे वैसे भी हमारे 4 कैटेगरीज ही हमने पढ़े हैं अपने सिलेबस में, उनमें से कोई भी आप लेके उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो अब आती है बात प्रोजेक्ट फाइल जो आपको बनानी है, उसमें आपको मेनली कौन से हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, कौन से पेजेस इंक्लूड होने चाहिए। सो द फर्स्ट पेज of the file should describe title of work, identity of student, school and the teacher concerned. Index to indicate columns for title of work, page number, date, teachers remarks and signature। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे पेज नंबर नहीं लिखते हैं। एंड डेट किस पर्पज से चाहिए कि कौन सा वर्क आपका कौन सी डेट पे टीचर ने चेक किया। The format of the project work will be, first of all, student of the problem, name of the project, statement of the problem, that is name of the project, then the objectives, the period of study, the source material, कहाँ से आपने data collect किया, tools of analysis used, processing and tabulation of data, diagrammatic representation and graphic representation, pie diagrams, bar diagrams and the graphs। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपना जो भी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके प्रोजेक्ट बनाने में। तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं दैट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ डायग्रामेटिक ग्राफिकल
through pie diagrams, bar diagrams and graphs. जितना कलरफुल और अच्छा प्रेजेंटेशन आप करेंगे इतना इजीली आप मार्क्स स्कोर करेंगे. Derivations, interpretations and conclusions, and lastly the assumptions, if any, if you have taken. Project file should be neatly handwritten and presentable with page numbers. Each step of the solution needs to be highlighted. Conclusion drawn should be placed in box at the end. So ये क्या लिखा है इसने, हैंड रिटन होना चाहिए प्रोजेक्ट. इवेल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे और वो आपके प्रोजेक्ट को इवेल्यूएट करके आपको मार्क्स देंगे. सो व्हाट पैरामीटर्स दे विल टेक अलॉट मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, द कवरेज, द प्रेजेंटेशन स्किल्स, इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन एंड द ओरिजिनलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द वर्क. देखिए अगर आप कुछ बच्चे होते हैं नेट से या कहीं से भी प्रोजेक्ट को एज इट इज़ कॉपी करके बना लेते हैं. सो जो एक्सटर्नल आया है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, इस बात को मान के रखिए अपने माइंड में. तो अगर आपका वर्क ओरिजिनल नहीं है ही विल नॉट अलॉट मार्क्स टू यू. देखिए कहीं से रेफरेंस लेने में प्रॉब्लम नहीं है. आप इंटरनेट से बहुत सारे यूट्यूब पे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, मेरे चैनल पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, आप रेफरेंस ले सकते हैं, उससे समझ सकते हैं. लेकिन आप एज इट इज़ अगर उनको कॉपी कर देते हैं देन इट विल बी अ रॉन्ग स्टेप बाय यू. ओके, तो डू नॉट कॉपी इट, मेक प्रेजेंट योर ओरिजिनल वर्क. अब बात आती है रिटन टेस्ट जो आपका होगा. रिटन टेस्ट में का क्या ऑब्जेक्टिव है? To give them exposure to analyze the financial statements of the business firms and help them derive meaningful information and conclusion therefrom. To know how efficiently the students can derive conclusions and express them. एक बात अपने माइंड में क्लियर रखना, जो ये 12 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा इसमें क्वेश्चंस वैसे नहीं होंगे जैसे आपके मेन एग्जामिनेशन में आते हैं. द क्वेश्चंस इन द रिटन टेस्ट विल बी ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड नेचर, जिसमें आपको अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा. उसमें डायरेक्टली ऐसा नहीं आ जाएगा आपको करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ दे दी और बोला कि करंट रेशियो कैलकुलेट करो. नो, द क्वेश्चंस विल बी ऑफ एप्लीकेशन नेचर, जिसमें आपको बीइंग अ मैनेजर ऑफ अ बैंक आप डिसीजन लीजिए, कौन से रेशियोज़ को आप यूज़ करके डिसीजन लेंगे. बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ अ कंपनी आप डिसीजन लीजिए. इस तरह के क्वेश्चंस आपके रिटन टेस्ट में आने वाले हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. उसकी प्रैक्टिस के लिए अगर आप चाहते हैं तो मेरे पास में एक क्वेश्चन बैंक है, मैं आपको PDF सेंड कर सकता हूँ. उसके लिए आपको कमेंट में मेल ID मेंशन करना है. द गाइडलाइंस फॉर द टीचर्स इज़ ऑल्सो देयर एंड द गाइडलाइंस फॉर एग्जामिनर्स इज़ ऑल्सो देयर. So students will be given 2 application oriented problems of 6 marks each. अब यहाँ पे 6 मार्क्स के आपको डिवाइडेशन भी हो सकते हैं, उसमें क्या कर दें आपको कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके पार्ट A और B कर दिया 3 मार्क्स के, और क्वेश्चन नंबर 2 के भी पार्ट A और B कर दिया. तो इसके हिसाब से वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. द क्वेश्चन विल बी सेट इन कंसल्टेशन विद द स्कूल टीचर्स. नो क्वेश्चन सिमिलर टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा है देखिए, no question similar to the questions given in 3 marks question paper of the board should be asked here. The question pattern will be absolutely different. अब किस तरह के क्वेश्चन से, पहली बार टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को जरूर से प्रैक्टिस करवाइए वो क्वेश्चंस जो कि प्रैक्टिकल में बच्चे को देने हैं, और दूसरा स्टूडेंट्स आप जरूर से उनको प्रैक्टिस कीजिए. ओनली सच क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी शुड बी आस्क्ड. फॉर द रेफरेंस शुड बी आस्क्ड, इसको थोड़ा सा बी आस्क्ड विच एनकरेज थिंकिंग ऑन प्रैक्टिकल लाइंस. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में. अ क्वेश्चन बैंक इज़ गिवन इन दिस बुकलेट फॉर रेफरेंस एंड दैट कैन बी शेयर्ड विद यू ऑल. मैंने जैसे कि बताया वो क्वेश्चन बैंक मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं. आपको जस्ट अपना मेल ID कमेंट में मेंशन कर देना है. आई विल जस्ट सेंड यू दैट क्वेश्चन बैंक, तो जिसमें से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपके प्रैक्टिकल में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं. वाइवा की अगर हम बात करें, सो ऑब्जेक्टिव, तो whatever leave with the objective, but come to the guidelines for examiners. The work done by the students in project file will be form the basis of asking question. अक्सर बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि वाइवा में क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछ लिया जाएगा. सो याद रखिए, द मेन बेस विल बी द प्रोजेक्ट फाइल ऑफ योर प्रिपेयर्ड बाय यू. लेकिन मेन बेस ये है, ठीक है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन इधर उधर से और भी पूछा जा सके. द एक्सटर्नल एग्जामिनर मे आस्क 2 to 3 क्वेश्चंस टू टेस्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क डन इन द फाइल.
मार्क्स विल बी अवॉर्डेड आउट ऑफ 4 इन कंसल्टेशन विद द स्कूल टीचर। तो याद रखिए जो मार्क्स आपको अलॉट होंगे उसके आपके इंटरनल टीचर के भी पूरा रोल है। ऐसा मत सोचना कि पूरे मार्क्स आपको एक्सटर्नल टीचर ही अलॉट करके जाएगा। जो आपका रेगुलर इंटरनल टीचर है एज वेल एज द एक्सटर्नल हु अलॉटेड बाय द बोर्ड, दोनों कंसल्ट करके आपको मार्क्स अलॉट करेंगे। सो प्लीज़ फॉलो द गाइडलाइंस, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर टीचर ऑल्सो। Then, Viva cautions should relate only to the project to check the authenticity of the work and to check that the student understands the idea behind the project। मैं बहुत जल्द एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसमें मैं अपने स्टूडेंट से मॉक वाइवा कंडक्ट करूँगा और उसका मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द वाइवा इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो वो आप जल्दी ही मैं इस तरह का एक वीडियो अपलोड करूँगा। फाइन। सो आई होप आपको जो भी क्वेश्चंस माइंड में थे, जो भी कन्फ्यूजन्स माइंड में थे, वो सब क्लियर हुए होंगे। काफ़ी अच्छी तरह से आपको आपके अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट एंड अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल्स के बारे में नॉलेज मिली होगी। फिर भी अगर माइंड में कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी बचा है तो कमेंट बॉक्स किसके लिए है? मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट एंड you will be instantly supported, you will be assisted instantly. Thank you, and for more such videos subscribe to my channel.